You guys need to settle down. Yeah. Just settle down. The Union Cabinet today, I said that the Union Cabinet today met at 18 hours in the evening, and it was unanimously, and I underscore the word unanimously, decided that both the ordinance with regard to certain sections of the Representation of People's Act as well as the bill would be withdrawn. सर, आपने क्या फैसला था? आप खुद कि आज शाम को 6 बजे कैबिनेट की बैठक हुई थी। उस बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट को लेकर जो अध्यादेश है और जो विधेयक है, सरकार दोनों को वापस लेती है। Sir, did the Prime Minister say one by one? Sir, did the Prime Minister say anything about the statement which was made by Rahul Gandhi, sir? कैसे लेंगे सरकार बिल तो संसद की प्रॉपर्टी? You are absolutely correct. Insofar as the bill is concerned, the bill is the property of the Parliament. So an appropriate motion at an appropriate time when Parliament reassembles would be moved to withdraw the bill. सर, एक बड़ा सवाल है। Did the Prime Minister say anything, sir, about the statement that was made by Rahul Gandhi? What is it that has prompted the cabinet, sir, to take this decision? Well, allow me to once again underscore that the decision of the Union Cabinet was unanimous, and as the Honourable Prime Minister had articulated yesterday, that democracy is not a monolithic authoritarian system of government. We respect the diversity of views, and yes, there was a view which was articulated by the Vice President of the Indian National Congress, Mr. Rahul Gandhi, and possibly he was taking into his sweep the widest possible feedback that he had got with regard to this particular ordinance. So therefore, under those circumstances, the decision was reconsidered, and it was decided that we would take both the bill and the ordinance back. थोड़े दिनों पहले सरकार के सारे मंत्री इस अध्यादेश को डिफेंड कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत ठीक है, इसकी जरूरत है। अब सिर्फ राहुल गांधी के कहने से पूरे कैबिनेट का विचार कैसे बदल गया? उनमें से एक आप भी थे, आप भी थे, आप निगाह में आगे गिर जाएंगे उनके ऊपर। सर्वोपरि है कैबिनेट के। I can only answer one question at a time. आपकी बात बिल्कुल सही है कि केंद्र सरकार के कई वजीर, और उसमें मैं भी शामिल था, हमने इस अध्यादेश की हिमायत की थी। सरकार का प्रवक्ता होने के नाते ये मेरा उत्तरदायित्व तो बनता है कि अगर कैबिनेट किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है, उस निष्कर्ष का जो परिप्रेक्ष्य है उसको आपके समक्ष रखा जाए। अगर कैबिनेट अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, सभी चीजों को अपने संज्ञान में लेते हुए अगर किसी और निष्कर्ष पर पहुंचती है, तब भी मेरा उत्तरदायित्व तो बनता है कि मैं उस परिप्रेक्ष्य को आपके समक्ष रखूं। सवाल ये कह रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि तब तो आपको किसी भी कैबिनेट के डिसीजन से पहले आपको राहुल गांधी से कंसेंट लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में फिर पलटवा देंगे। देखिए, जहां तक विपक्ष का सवाल है, मुझे नहीं मालूम आप किस विपक्ष की बात कर रहे हैं, पर जहां तक कई विपक्षी पार्टियों का सवाल है, जब सर्वदलीय बैठक हुई थी 1 सितंबर को और 13 सितंबर को, तो सारी पार्टियां इस बात पे एकमत थी कि इस तरह का विधेयक संसद में लाया जाए,
और उसके तहत सरकार ने पहल की थी। हाँ, लोकतंत्र में कभी कभी जो जनमानस है, जब उनकी भावनाओं का कोई उद्घोष करता है, उनको उजागर करता है, तो जरूर एक संवेदनशील सरकार होने के नाते ये हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम उस पर पुनर्विचार करें। एक मिनट, उसको पुनर्विचार करें। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने आज उसको ऊपर पुनर्विचार किया और जो फैसला है उसकी जानकारी मैंने आपके समक्ष दे दी। I think the Prime Minister has already answered that question. There is absolutely no question of undermining the authority of the Prime Minister or the cabinet system of government. In fact, I think to some extent it goes to demonstrate once again that you have a government in the UPA which is not authoritarian in nature. It's a government which is sensitive to public opinion when it is articulated. So therefore, if you look at it from a different perspective, not the perspective that you people have been running from the morning, it only goes to underscore the sensitivity that we attach to opinions which are articulated, and we are open and willing and transparent to reconsider our decisions. देखिए, ऐसा है कि मुझको जो कहना था इस मसले पे कह दिया है। अगर और कोई सवाल हो तो आप कुछ और बताइए। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी जानकारी देते हुए, सरकार का फैसला, अध्यादेश और बिल, दागियों को बचाने के लिए लाया गया अध्यादेश और बिल दोनों वापस होंगे। सरकार ने फैसला ले लिया है। और मनीष तिवारी ने खासतौर पर यह भी कहा कि सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ है, यानी किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। अब इस बात को साफ किया और बड़ी बात यह कही कि राहुल गांधी के विरोध के बाद आखिरकार कैबिनेट ने और सरकार ने यह फैसला ले लिया है कि दागियों पर अध्यादेश और इसके साथ ही साथ संसद में विचाराधीन बिल दोनों वापस होंगे। आपको बता दें कि अध्यादेश पर राष्ट्रपति को भी आपत्ति थी, ये भी जानकारी मिल रही थी। राहुल गांधी ने जब से इसको बकवास करार दिया उसके बाद से ये विवाद का मुद्दा बन गया था और अब लंबी चौड़ी बैठकों के दौर के बाद सरकार ने फैसला ले लिया है कि अध्यादेश और बिल दोनों वापस होंगे।